Hey students, welcome to the channel. It's me, Yami. आज again we'll be taking some sessions on the preparation of the Reliance की जो scholarship है उसकी जो aptitude test है उसके लिए. Yes, we have already been practicing together. काफी lectures हमने record करके रखे हैं and we solved questions onto missing numbers, questions onto ratio and again I would like to tell you here मैं questions वही ले रही हूँ जो कि sample paper में available है. जिस टॉपिक पे क्वेश्चंस अवेलेबल है इनटू सैंपल पेपर आई एम टेकिंग दैट टॉपिक इनटू डिटेल एंड सॉल्विंग 10 to 12 क्वेश्चंस ऑन टू ईच ताकि हर ही टॉपिक के आपकी प्रैक्टिस हो जाए राइट. सो वर्बल एबिलिटी वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग लेक्चर्स ऑन टू यूट्यूब कमेंट्स. काफी लोग इंसिस्ट कर रहे हैं कि वर्बल एबिलिटी का हमें चाहिए बिकॉज वी फाइंड इट अ बिट टफ. तो आज हम उसका ही एक टॉपिक ले रहे हैं दैट इज एक्टिव एंड पैसिव. And into this I would like to mention मैं जो भी पढ़ा रही हूँ आपको the sample questions I am giving you here on to active passive उसकी जो PDF है वो attach है onto our website. आपको अगर reference में चाहिए तो link is being provided in the description box below. You can just check out the link and go to the PDF and practice the sessions again. Okay, so let's begin. And yeah, Reliance की जो scholarship है it's giving a huge amount. 2 lakh तक की scholarship आपको वहाँ पे मिलेगी. And the detailed video on to how to apply, what are the eligibilities, what are the other benefits, everything has been made onto the channel. जिनकी का भी मिस हुआ है do check it out. The link are provided in the description box below. Reliance के अलावा जो और scholarships running हैं काफ़ी हैं. ONGC है, we have HDFC जो कि extend हुई है उसकी last date, everything जो भी वीडियोस हैं ऑन टू स्कॉलरशिप्स विच आर एंडिंग इन द मंथ ऑफ सितंबर, सारी की सारी स्कॉलरशिप के लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है आप लोगों के लिए टू चेक इट आउट. ओके, सो लेट्स बिगिन विद टुडेज प्रैक्टिस ऑन टू एक्टिव एंड पैसिव स्टेटमेंट्स. आपको स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे जिसको आपको कन्वर्ट करना है. इफ इन केस द स्टेटमेंट इज इनटू पैसिव मोड आपको एक्टिव में लाना है और अगर एक्टिव मोड में है तो पैसिव में लाना है. तो we'll just discuss it and how to predict what shall be the answer. उसके टेक्निक भी हम डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, चलो let's begin with the sessions with the questions. Here we go. So this is the very first question, that is the teacher praised the students. Okay, this is the active mode जहाँ पे वो लोग बता रहे हैं into active mode के टीचर ने स्टूडेंट्स को प्रेज किया, उसको अप्रिशिएट किया, राइट. सो उसका उल्टा क्या हो जाएगा अगर स्टूडेंट्स के डायरेक्शन से बोले. इफ अ स्टूडेंट डायरेक्शन से आप बोलो, अगर टू बी वेरी टेक्निकल, दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द सब्जेक्ट. ओके, टीचर इज द सब्जेक्ट, स्टूडेंट्स आर द ऑब्जेक्ट. तो अगर ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना दो तो किस तरीके से आप बोलोगे इज व्हाट इज द पैसिव मोड. ओके, सो इनटू रिवर्स विल गो. द स्टूडेंट्स आर प्रेज्ड बाय द टीचर्स, द स्टूडेंट्स वर प्रेज्ड बाय द टीचर्स, the teacher is praised by the students. उल्टा हो जाएगा, meaning the students have been praised by the teachers. अभी यहाँ पे एक टेंस का भी मोड आपको देखना पड़ेगा. praised है मतलब it is into past tense, उन्होंने praise किया था, right? so the students were praised आएगा. okay, that will also go into past tense. tense change नहीं होगा, हालांकि object subject change हो जाएंगे. so the second option here goes right. the students were praised by the teachers. The next in the row is he writes a letter. उसने एक लेटर लिखा. ओके, सो इसका अभी लेटर का पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखें, लेटर की तौर से हम बोले, ओके, लेटर की तरफ से हम बोले तो a letter was written by him, is written by him, a letter has been written by him, or letter will be written by him. अभी हरी स्टेटमेंट यहाँ पे चारों चार ऑप्शन लेटर के तौर पे ही है, बट हमें यहाँ पे अब देखना पड़ेगा टेंस. ओके, सो he writes the letter. Right, so the correct tense into the passive mode is a letter is written. Okay, it goes into the present tense, is written by him. Okay, so that is how it is converted into passive. Clear? Next in the row is they will finish the work by tomorrow. वो लोग अपना काम कल तक finish करेंगे. They will finish the work by tomorrow is the active mode. अभी they being the subject and will finish the work by tomorrow. ओके, तो वर्क जो है वो ऑब्जेक्ट है, राइट. तो हमें उल्टा करना है, वर्क को आगे लाना है. तो अभी द वर्क इज फिनिश्ड बाय देम बाय टुमारो, विल बी फिनिश्ड, विल हैव बीन फिनिश्ड, विल बी फिनिश्ड. ओके, सो ये सभी में टेंसेस में ही डिफरेंस है. सो यहाँ पे आप देख सकते हो द वर्क विल फिनिश, दे विल फिनिश द वर्क बाय टुमारो. ओके, सो द वर्क विल बी फिनिश्ड बाय देम बाय टुमारो.
ओके, दिस विल बी इन अ वे पास्ट टेंस कि वो लोग कह रहे हैं कि कल तक उनका काम हो जाएगा, राइट? सो ये चीज हो गया. नेक्स्ट इन द रो इज द शेफ इज प्रिपेयरिंग द मील. तो द मील इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय द शेफ. ये एक्टिव पैसिव ऐसा है ना, आफ्टर प्रैक्टिसिंग सम क्वेश्चंस ना, यू विल ऑटोमेटिकली ड्रॉ टू द राइट आंसर इन द नेक्स्ट वन. अपने आप से ही आ जाए, राइट? सो द शेफ इज प्रिपेयरिंग द मील इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय द शेफ. नेक्स्ट, समवन स्टोल माय वॉलेट. किसी ने मेरा वॉलेट चुराया. सो वॉलेट के तौर से हम बोले तो वॉलेट वाज स्टोलन बाय समवन. ओके, सो वॉलेट इज स्टोलन नहीं आएगा, स्टोल है, पास्ट टेंस है, तो was stolen, right? So that goes right. Then next in the row is the children are playing football. The children are playing football. बच्चे जो हैं वो फुटबॉल खेल रहे हैं. The children are playing football. इसका अभी करना है अपने को पैसिव. पैसिव करेंगे तो फुटबॉल के तौर से हम बोलेंगे तो फुटबॉल is being played by the children. Is being played by the children. क्यों? Are playing continuous present continuous tense है, तो उसी को अगर हमें into passive mode लाना है तो is being played. Okay, so that goes with the continuous tense. being लगा दो मतलब continuous हो जाएगा. So they will announce the results soon. results के तौर पे अगर आप बोलो तो results will be announced soon. Okay, अगर आगे भी ऐड करना हो तो by them. Okay, जो कि ऑप्शन में नहीं है, but this is also okay. The results will be announced soon. Okay. Next in the row is she has completed the project. Again into past tense, has completed. Okay, तो इसका अगर आपको passive करना है तो project के तौर से अगर आप बोलोगे तो project has been completed by her. Okay, तो ये चीज हमेशा से याद रखना. अगर completed मतलब ed वाला कोई भी past tense आपके सेंटेंस में दिख रहा है, एक्टिव वाले सेंटेंस में, तो उसका हमेशा से जब भी पैसिव होगा हैज बीन लग जाएगा. ओके, सो दैट हैज टू बी केप्ट इनटू माइंड. ओके, प्लूरल सिंगुलर के फॉर्म में हैज और हैव चेंज होगा, बट अदरवाइज इट विल बी बीन. ओके, ये चीज यू नीड टू रिमेंबर. दे क्लीन्ड द रूम yesterday. ओके, दे क्लीन्ड द रूम yesterday. अगेन ed है, द रूम वाज क्लीन्ड बाय देम yesterday. ओके, द रूम वाज क्लीन्ड बाय देम yesterday. Next, she will deliver the speech. Okay, she will deliver the speech. अभी will deliver है. Okay, so speech which will be delivered by her. Okay, तो वो हो जाएगा past tense. Clear? तो ये है active passive mode. Very easy to recognize the correct options from the four. ये चीज भी again I'll tell you with the practice आपकी आती जाएगी. Right? So hope it helped. as इस तरीके के questions, one of the question could be such into your Reliance Aptitude Scholarship Test. Okay, all the best. I'll be coming up with more such questions just for you guys onto the channel. It's me, Yami. Stay tuned, keep sharing the channel and subscribing the channel. Thank you.